Assalamu alaikum. My name is Hasif Tikhar and I am from Freelance Speaking Institute. In today's lecture, we are going to start some advanced spoken English course. So in today's lecture, we are going to start tongue twisters and some common Urdu phrases. So, as far as tongue twisters are concerned, so these are nothing but just like a complex phrases or sentences or group of words which are designed to be difficult to articulate properly, often due to a sequence of similar consonantal sounds. Means that these are somehow like homophones, you can say, or these are just like some words which are difficult in our sense, but when we articulate it properly, then it would be helping in our accent. Okay, so let's get started with some common tongue twisters. I'm going to read it three times. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Betty Botter bought some butter, but she said the butter's bitter. Betty Botter bought some butter, but she said the butter's bitter. Betty Botter bought some butter, but she said the butter's bitter. Now, in a fast pace, she sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Betty Potter bought some butter, but she said the butter's bitter. So you can infer that how these tongue twisters are helping in our accent. क्योंकि होता ये है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो मेन जो उसका कोर कंसेप्ट है वो यही है कि आपका एक्सेंट बिल्कुल ठीक हो या फिर आप उसमें फ्लुएंट हो। अपार्ट फ्रॉम एक्सेंट यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो टंग ट्विस्टर्स वाहिद वो चीज़ हैं जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि शी सेल्स सी शेल्स, तो इसमें ये कॉमन कंसोनेंटल साउंड्स आ रही हैं। बाय द सी शोर, ठीक है? इससे क्या होता है कि जब आप कुछ कॉमन और सिमिलर वर्ड्स की एक साथ अदायगी कर रहे होते हैं, तो देन आपका जो फ्लुएंसी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट 5 टंग ट्विस्टर्स नहीं हैं, टंग ट्विस्टर्स आर मेनी ऑफ प्रेजेंट हियर। सो आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किए जाएँगे कुछ टंग ट्विस्टर्स, एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड फॉर द फ्लुएंट इंग्लिश यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। सो मूव ऑन, कुछ कॉमन फ्रेजेस। हम जब उर्दू में बात करते हैं तो हम कुछ भी उर्दू में बोल सकते हैं और हम उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। लेकिन होता ये है कि व्हेन वी हैव टू प्रोनाउंस दोज़ वर्ड्स इन इंग्लिश, तो हम उसको लिटरल ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होती। You have to be constructive in your translation. Constructive means that you have to convey the meaning of the word, don't just the literal concept. For example, अपनी बात से मुकर जाना, to go back on your word, ठीक है? उसे इतनी ही समझ है, that's all he or she understands. ऐसे थोड़ी होता है, it doesn't happen like that. खुद को संभालो, pull yourself together. मैं जाते जाते रह गया, I almost left but I didn't. तुम्हारी आवाज़ कट रही है, your voice is breaking up. देखते ही देखते, in no time or before you know it. कभी तो मेरी बात सुनो, at least listen to me sometimes, or do ever listen to me.
दोनों यूज़ हो सकते हैं। पानी चला गया, द वाटर इज़ ऑफ, ओके, और वाटर इज़ गॉन, और वाटर स्टॉप्ड। वाटर इज़ गॉन पाकिस्तान में आप यूज़ कर सकते हैं, बट आउट ऑफ द कंट्री अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप यू हैव टू से वाटर इज़ ऑफ, ओके। फॉर एग्जांपल लाइट चली गई है, द पार वी हैव अ पार कट ऑफ। कंबल ओढ़ लो, पुट ऑन द ब्लैंकेट, बच गए, दैट वाज क्लोज। कि ये ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है जब एक कोई हाईली टेरिफाइंग सिचुएशन होते होते रह गई, कि आप उसके बहुत करीब थे लेकिन यू हैव एस्केप्ड इट। लगे हाथ कुछ करना, डू समथिंग व्हाइल यू आर एट इट। मुझे तुमसे कुछ काम था, आई हैड सम वर्क विद यू। इसी बहाने, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, यूजिंग दिस एक्सक्यूज। लो कर लो बात, ओह कम ऑन, वो तो दूर की बात है, दैट्स अ फार फेच्ड आइडिया, या दैट्स एन अदर स्टोरी। मुझे लग ही रहा था, आई हैड अ फीलिंग आई न्यू इट। सो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी बात से मुकर जाना अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट गुड टू गो बैक ऑन योर वर्ड। उसे इतनी ही समझ है, उसे और कुछ समझ नहीं आता। दैट्स ऑल ही अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। ऐसे थोड़ी होता है, तुम कुछ गलत कर रहे हो। इट डजंट हैपन लाइक दैट, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। खुद को संभालो, ये वक्त रोने का नहीं है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, दिस इज नॉट द टाइम टू क्राई। मैं जाते जाते रह गया, कुछ काम याद आ गया था। आई ऑलमोस्ट लेफ्ट बट डिडंट, आई रिमेंबर्ड सम वर्क। तुम्हारी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, से इट अगेन। और योर लाइन इज ब्रेकिंग अप, से इट अगेन। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बिफोर यू नो इट, इट स्टार्टेड रेनिंग। इन नो टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग। कभी तो मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ। Do ever listen to me sometimes, I always listen to you. Or at least listen to me sometimes, I always listen to you. पानी चला गया, अब हम क्या करें? The water is off, now what do we do? कंबल ओढ़ लो, सर्दी बहुत है। Put on that blanket, it's very cold. हम बच गए, हादसा बहुत बड़ा था। We were saved, it was a big accident. और आप ये भी कह सकते हैं कि बच गए, उसने तो हमें मार ही डाला था। कैसे गाड़ी चलाते हैं कुछ लोग। दैट वॉज क्लोज, ही ऑलमोस्ट किल्ड अस, द वे सम पीपल ड्राइव, आई टेल यू। अब हम ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं कुछ लोग, कितना बोलते हैं कुछ लोग। तो अब ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं आप उसके लिए यूज़ करते हैं, द वे सम पीपल स्पीक, आई टेल यू। मीन्स डैट कैसे करते हैं कुछ, कैसे बोलते हैं, तो आप एंड पे लगाते हैं आई टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बोलते हैं कुछ लोग, द वे सम पीपल स्पीक, आई टेल यू। कैसे बोलते हैं कुछ लोग, द वे सम पीपल स्पीक, आई टेल यू। कितना बोलते हैं कुछ लोग, हाउ मच पीपल स्पीक और हाउ मच सम पीपल टॉक, आई टेल यू। बच गए, अग्नि इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया होता तो जीरो पक्का था। दैट वॉज क्लोज, हैड द इन्विजिलेटर कॉट अस, अ जीरो वॉज अ गिवन। अब जब आप कोई चीज़ होने का पक्का होता है आपको कि ये चीज़ होके ही रहनी है, कि ये पक्का था, तब आपके लिए आप यूज़ करते हैं वाज अ गिवन। ओके, फॉर एग्जांपल, तुम्हारा फेल होना पक्का था या तुम्हारा पास होना पक्का था। योर फीलिंग वाज अ गिवन। ओके, आज तो बच गए, मौके पर तुमने स्टीयरिंग संभाल लिया, नहीं तो हो गया था काम। डैट वाज अ क्लोज call earlier today. You took over the steering wheel just in time, or we would have had it. We would have had it. हो गया था काम, हम मुश्किल में फंस जाते, फंस गए थे, हम नहीं तो हम। ये इस तरह के जो कुछ अजीब से सेंटेंसेस होते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं we would have had it. Okay, we would have had it. For example, had you not warned me on time, I would have had it. अगर तुम सामने अगर तुम टाइम पर सचेत ना करते तो मेरे तो काम हो गया था। अगर तुम काम टाइम पे मुझे ना बताते तो मेरा तो काम हो गया था। कि हैड यू नॉट वांटेड मी ऑन टाइम,
आई वुडंट हैव हैड इट। तो ये कोई समहाउ कुछ क्रिटिकल सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लगे हाथ कुछ करना, ऐसे ही बैठे ना रहो, ठीक है? डू समथिंग व्हाइल यू आर एट इट, डोंट जस्ट सिट देयर। मुझे तुमसे कुछ काम था, ज़रा रुक जाओ। आई हैड सम वर्क विद यू, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। आई हैड सम वर्क विद यू, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। उस इसी बहाने मैंने तुम्हें देख लिया। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई गोट टू सी। इसी बहाने मैं तुम्हें देख लिया। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई गोट टू सी यू। मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारा काम। वट डू आई केयर, इट्स योर बिजनेस। लो कर लो बात, तुम्हें हर चीज़ पे एतराज़ है। ओह कम ऑन, यू हैव एन ऑब्जेक्शन टू एवरीथिंग। वो तो दूर की बात है, अभी हमें ये मसला हल करना है। वो दूर की बात है, अभी हमें ये मसला हल करना है। दैट्स अ far-fetched idea right now. We need to solve this problem. मुझे लग ही रहा था कुछ गलत होने वाला है। मुझे लग ही रहा था कुछ गलत होने वाला है। I had a feeling that something wrong was going to happen. I had a feeling that something wrong was going to happen. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आपने ये देखा कि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि जो आप उर्दू में तो सही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको उसका लिटरल नहीं बल्कि कंटेक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो टंग ट्विस्टर्स हैं वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे ग्रुप में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।